ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होता है। नेटवर्किंग जो इशू होते हैं, कुछ भी होता है वो और कहीं ना कहीं मैंने एक चीज और पढ़ी थी इसके बारे में कि दैट RMI ऑल्सो यूज सम सॉकेट नेटवर्किंग एट द बैक एंड। Let me show you. I save that link for you, for all of you. Let me open this. चलो अनुराग ने एक और Sharing my वेबिनार दे screen दिया। now. अनुराग ने एक और वेबिनार का लिंक भेजा कि ये भी ज्वाइन कर सकते हो तो। So, is it visible to all of you? देखो वो दोनों को फाइल भेज रहा हूँ, देख के बताओ जल्दी से। आप पुट Is my screen is visible? Okay, so you guys can check over here. So, फाइल भेजी, जल्दी जल्दी देख के बताओ। RMI about the communication between two objects residing in the different JVM, where the JVM can be located in the different machines too. तो मतलब दोनों different locations पे हो सकते हैं। It is a distributed environment, so you can invoke method on the object residing in another JVM using RMI. So RMI use socket programming behind the scene to achieve this. सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या है कि हमारे सामने होता है, वो जो कोड कर रहे हैं सब कुछ है, तो बैकएंड पे हमें वो चीजें मतलब एक तरह से हाइड, और बिहाइंड द सीन क्या है कि बैकएंड में RMI में भी वही चीजें यूज हो रही हैं, वही वो सॉकेट प्रोग्रामिंग ही यूज कर रहा है। बस क्या है कि उसका कोड जो है वो हमने नहीं करा हुआ। सो वी यूज पैकेजेस, और पैकेजेस में वो ऑलरेडी डन है, कोड जो है वो ऑलरेडी डन है। दैट्स वाई हमें सॉकेट प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती फॉर द RMI। Is it clear to Harshit? हर्षित एक बार फोन All को of फाइल you भेज दी। can please reply back. Okay, so let me show you the program. अमन ठीक है क्या फाइल? रुक जाओ, चेक कर रहा हूँ। अबे इसको तूने पहले क्यों लिख दिया? Okay guys, so I'm sharing my screen once again for your programs. हाँ अभी इसको अपलोड So मत how you करियो, can तेरी create चीज गलत है। जो let XSD me वाली है ना, just उसको अभी मत लिख, बाद switch में on the लिख। video because this is your last program and I need जाके उसको to कन्वर्ट कराना send it to the स्कीमा another निकाला उसका, group उसी के A. बाद तो उसे जो वैलिडेट करा। जनरेट होगा तो वो आउटपुट है ना, this वो आउटपुट में लिखना होता है। particular program, or you can say वैसे लिखा ना, तो स्टेप हमने करे उस हिसाब से मैंने एक एक करके लिखा है। experiment. अबे तो वो तो ठीक है, लेकिन देखो उसमें स्टेप्स में ना XML और DTD लिखना है बस। जो आउटपुट जनरेट होगा ना वो XSD होगा। I already told you that we have some steps to create the things. So let's say the one thing that we required is to create your interface. Okay, so I'm creating an interface in which we have a query method. Is it visible to all of you? एक्सपेरिमेंट 3 की क्या करनी है बेटा? जस्ट लेट मी नो which date is feasible for you. Is it on Monday? Because you have to submit for assignment भी है। 7 assignment for assignment के लिए मेरे ख्याल से तो टाइम है today. Okay, that's fine. So
will make visible this experiment also, experiment 4 also, and the date for this experiment I think 11 is done. Okay, so till 11 you have to submit this experiment. Okay, so we'll let you know and we'll send this program, and based on this program you can create your own so experiment. ठीक है, okay, done. Done. मतलब You can, but please upload 1 and 2 before the date, and we'll update 3 और 4 की 3 कह and रहा 4 as an 11. आज ही निपटा देंगे भाई, ज़्यादा देर नहीं बैठ रहे। हाँ यार, तो वैसे भी एमएसटी है। No, Siddhika, that's not possible because I have time at the MST, so that I can check all of your assignments and even your experiment. So that's why 11 is okay, I think. Yes, I know, Naman, but maybe it will postpone. मतलब there are 20 to 40% chance कि आपका 11 को जो है वो MST पोस्टपोन हो सकता है। कर दो भाई, कर दो भाई, CMS चेक कर लो भाई। Harshit, what is the doubt करते हैं। in experiment 2? Please do let me know. हैंड रेज करो। So let me complete this this program, and then we will discuss about the experiment 2. Okay, Harshit, is it fine? Okay, so the first thing that we need to do is to create your interface first. Okay, so this is my interface, and what you need to do is to first you have to import java.rmi, so remote method invocation package, in which you have all the required method and packages, or you can say all the required classes that are responsible to communicate with between client and server. So here I'm creating interface, not a I'm creating interface, not a class. Mind it. कई बार प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि हम क्लास लिख देते हैं, तो दैट विल नॉट फिजिबल. सो फर्स्ट वी क्रिएट इंटरफेस, सर्च, नेम एज अ सर्च, देन एक्सटेंड द रिमोट. Remote is a class which we get from RMI, and then we are making a function name as a query. Within that we are taking a variable, you can say it is a string type object, and then we throw remote exception. If any exception is occurred, then it will throw the remote exception. Done. So we have created this. We just declaring the functions within your interface. We are not defining this function, we are declaring this function. Okay, we'll define this function in your which class? In your parent, in your child class. Okay, so this is the function that we define for the query, or you can say this is the interface class that we define for the searching purpose. Now after this we create a search query class, Java class. Okay, so here we take what? We take two things. Okay, first we take RMI and then server. Okay, and then we are create a class named as a search query. Okay, and after that extend the unicast remote object class. Okay, then implement what? Implement search that we created recently. तो खुद को अभी तक समझ में करवा क्या रहा है? पिछला प्रोग्राम समझाया, तो मैंने उसको क्या करा? इम्प्लीमेंट कर लिया, बिकॉज इट इज माय इंटरफेस. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. वी आर इम्प्लीमेंटिंग द सर्च class, search interface. So here I'm creating what? I'm creating a your constructor, and after that we are calling the super method. After that we are defining that particular class which we have declared in the search.
So string query, string search, then taking a string result, and within result search dot equals reflection in Java. Result is not found, otherwise result is found, otherwise not found. Means when we are connecting with the remote server, then it will reflect that it is done or not. It will get some queries, that query is reflection in Java. तो ये क्वेरी आएगी और वो सर्च में क्या करेगा, ये सर्च वेरिएबल में क्वेरी आएगी, देन इट विल चेक फॉर कि सर्च में जो पैरामीटर आया है, जो हम वहां से पैरामीटर भेजेंगे, क्या वो ये है रिफ्लेक्शन इन जावा. If both are equal, then it will found that client and will show you a message that client is found or server is found, and now we can communicate with each other. ठीक है, और रिटर्न कर देगा रिफ्लेक्शन इन जावा जो भी रिजल्ट आएगा, फाउंड और नॉट फाउंड. ठीक है, तो ये इतनी क्लास बनाई मैंने, कौन सी, सर्च क्वेरी. नाउ वी आर क्रिएटिंग टू मोर थिंग्स. देन फर्स्ट इज योर सर्वर and the second one is your client. In server we register, मैंने पहले भी बताया था ना कि we have to register our service over the RMI registry. तो यहाँ पे मैं वही करूँगा. In this case I'm doing what, I'm register my services over the RMI registry. Are you getting this? All of you are getting this or not? Guys, do reply. Okay, so when I run this program, you will get to know कि क्या actual में क्या है कैसे काम कर रहा है, how it will work. It is just like if you have done the socket programming, then there is nothing more complex within this if you have done socket programming. Otherwise something is different, but you can understand how we can create a class, main class, and then all the things. When we run this program, you will definitely having any idea that this and this both the program will communicate with each other. Clear? Okay, so I'm doing what? I'm creating an object of search class. Okay, search class मेरी उसी में पड़ी हुई है जो मैंने सॉरी आपका सर्च क्या है, एक मैंने वो बना रखा है, ऑब्जेक्ट बना रखा है, और सॉरी इंटरफेस बना रखा है. जस्ट ए सेकेंड. यस, तो मैंने क्या करा, वी आर जस्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड pass the reference of search query values. ठीक है, मैंने सर्च क्वेरी का क्या बनाया, जो कंस्ट्रक्टर, देखो दोनों चीजों में डिफरेंस देख लेना बेटा. ऑब्जेक्ट में सर्च का बना रहा हूं, पास में क्या कर रहा हूं, सर्च क्वेरी कर रहा हूं. सो यू कैन से दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज skeleton object, which I taught in the previous session. That is your skeleton object that we use in this. Now I'm registering my क्या बोलते हैं, service over the RMI registry. So locate registry dot create registry over this port. ठीक है, मैंने इस पोर्ट को यूज करके एक रजिस्ट्री क्रिएट कर ली इस लोकेशन पे या इस सर्वर पे. जो मेरी जो सर्विस है वो क्या होगी, एक्सपोज होगी. ठीक है, नाउ मैंने क्या बताया था, मैंने पोर्ट नंबर डिसाइड कर लिया. दिस पोर्ट नंबर आई विल यूज फॉर माय कम्युनिकेशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग क्या था, हाउ दे बोथ कम्युनिकेट विद द व्हाट, विद द लोकेट रजिस्ट्री. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे गिग्स फॉर गिग्स पे भी आप ये जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, उसमें इसकी इंफॉर्मेशन अगर मतलब यहाँ पे क्लियर ना हो थोड़ा बहुत, आप जाके वहाँ पे
ये चीज क्लियर कर सकते हो कि कहाँ पे कैसे इसको पूरा करना है, ठीक है, कोड को, या मतलब कुछ डेफिनेशन आपको अगर क्लियर नहीं होती यहाँ पे तो you can follow that also. So in this case what we have, so bind the, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि server use what, server use the bind method, server use what, server use bind method to publish, or you can say register their services over the RMI registry. And client will use which method? Client will use fetch, or sorry, lookup method to get the object, or stub method, or create stub method using the, or search the services from the RMA registry. तो उसको लुकअप मेथड यूज करना होता है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि लुकअप मेथड किसका पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लाइंट. क्लाइंट विल यूज लुकअप मेथड फॉर सर्चिंग द सर्विसेज, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो आपका सर्वर है दैट विल यूज विच मेथड? बाइंड एंड रीबाइंड. टू मेथड वी यूज फॉर द बाइंडिंग. सो देयर आर बाइंड एंड रीबाइंडिंग. सो मैंने नेमिंग डॉट रीबाइंडिंग करा, देन RMI लोकल होस्ट, मतलब मैं लोकल मशीन पे रन करवा रहा हूँ दोनों सिस्टम. अदरवाइज यू कैन सेट हियर व्हाट, यू कैन सेट होस्ट ID over here. If you are having two different machine and you want to communicate between both of them, so you are here to here you need to write what? You need to write the host ID of that particular machine. Then we pass a parameter like IBM, and then within that we are passing object, this object, search query object. So यहाँ से वो वैल्यू जाएगी उस लोकेशन पे, ठीक है, and will show you client concept. Now अब client का आ गया, ठीक है। अब क्लाइंट में क्या करा मैंने? क्लाइंट क्लास बनाई, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग ली आंसर कोमा वैल्यू. वैल्यू में मैंने क्या पास कर दिया? अब ये देखो, मैंने वहां कंपेयर करवाया होता है ना सर्च क्वेरी में, इफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू और सर्च इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन इन जावा, तो क्या करेगा वो? फाउंड बताएगा. तो अब यही वहां पे यही मैंने पास करनी है वैल्यू, ये वाली वैल्यू उस लोकेशन पे पास होगी. सो ट्राई लुकअप मेथड, ठीक है, फाइंड रेफरेंस ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट. तो सर्च पे मैंने एक्सेस एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन कन्वर्ट दैट इन सर्च नेमिंग डॉट. अब यहाँ पे देखो पहले क्या करा था हमने? वी आर यूजिंग बाइंड मेथड इन सर्वर एंड लुकअप मेथड इन व्हाट? इन क्लाइंट साइड. तो लुकअप मेथड लिया, किस लोकेशन पे मुझे उसको लुकअप करना है? दिस इज द पोर्ट नंबर एंड होस्ट नंबर, जहां जो मैंने क्या करी है रजिस्ट्री में रजिस्टर करी थी. फिर उसके बाद आंसर एक्सेस डॉट क्वेरी डॉट वैल्यू, तो ये आ गया आपका वैल्यू. तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जाएगी कहाँ पे? आपके जस्ट अ सेकेंड, मैंने शायद वो बंद कर दिया, वो ओपन करने दो. ये जाएगा आपका डायरेक्टली इसमें स्ट्रिंग में, सर्च में जाएगा. ये ऐसे नहीं आता है समझ में. उसके बाद क्या होगा? वो प्रिंट करवा देगा. अगर उसने कुछ रिटर्न करा तो आंसर में कुछ रिटर्न, मतलब ये वैल्यू पास करेंगे, वो फाउंड और नॉट फाउंड प्रिंट होगा, मतलब वो रिटर्न करेगा फाउंड एंड नॉट फाउंड. तो वो वैल्यू आंसर में स्टोर हो जाएगी, या तो फाउंड आएगा या नॉट. अगर मैं यहाँ पे कुछ और भेजता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और भेजता हूँ, तो सर्वर कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इंटरफेस के थ्रू. तो क्या होगा? ये वैल्यू जहां वहां जाके रिफ्लेक्ट होगी और आंसर में रिटर्न कर देगा कि यस दैट वैल्यू इज फाउंड. एंड आर्टिकल ऑन वैल्यू क्या है? रिफ्लेक्शन इन जावा, सॉरी वैल्यू आ जाएगी क्या? आर्टिकल फाउंड रिफ्लेक्शन इन जावा. फिर आंसर में जो रिटर्न आएगा फाउंड एट IBM.
ठीक है, आंसर में रिटर्न होगा ना, वहां से वैल्यू रिटर्न होगी, कहां से, सर्च क्वेरी से। यहाँ पे उसने करा हुआ है, सॉरी सर्च क्वेरी, तो यही करा हुआ है रिजल्ट में, और रिजल्ट को रिटर्न करा हुआ है। तो जिस लोकेशन में मैंने फंक्शन को कॉल करा है वहां पे वो क्या कर देगा, अपने वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो आर्टिकल वैल्यू ये हो गई, रिफ्लेक्शन इन जावा फाउंड एट IBM। ठीक है, अब इसको रन करना है, तो मैंने इसको इसमें रन नहीं करा, या मतलब मैंने इसको उसमें ऑपरेट नहीं करा, क्या बोलते हैं उसको, एक्लिप्स में। उसका एक रीजन है, रीजन क्या है कि यू आर नॉट हैविंग एनी कमांड टू रन ऑल द टू कंपाइल ऑल द फाइल्स एट अ सिंगल टाइम। सो यहाँ पे CMD में आप ये चीज कर सकते हो। कैसे आप क्या करोगे, जहां पे आपका प्रोग्राम पड़ा है, लेट्स से मेरा प्रोग्राम है इस वाले फोल्डर में, so we don't need to set CD and all, आप डायरेक्टली उसी डायरेक्टरी में ओपन हो जाओगे। नाउ हियर यू कैन टाइप व्हाट, यू कैन टाइप जावा star.java, जस्ट सेकंड, सॉरी जावा सी। देखो ना, अब जिनमें मेन नहीं होगा, एक आशिक एक और चीज होती है जिनमें मेन फंक्शन नहीं होता, यू विल नॉट गेट एनी कमांड लाइक रन एप्लीकेशन। गॉट माय पॉइंट। वहां पे क्या आता है, कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन। लेट मी शो यू दैट, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया वो Eclipse? लेट मी ओपन दिस। सो अगर मैं इसमें देखूं, इसमें रन करता हूँ, ये वाला प्रोग्राम है, जैसे सर्च है, सर्च का मैं करता हूँ क्लिक और रन करता हूँ, यहाँ पे रन कॉन्फ़िगरेशन आएगा। समझ आया? बाकी क्लासेस, जिनकी क्लासेस का हो सकता है, जो रन हो सकती हैं, दैट विल बी शोन एज अ जावा एप्लीकेशन। ठीक है, अदरवाइज इट विल शो यू व्हाट, इट विल शो यू, just a second, let me plug in the charger. So just repeat this, so you can check over here. So when I having this program, so एक single terminal होने की वजह से भी पंगा है, और दूसरा क्या है कि when I run this, because it doesn't have any main function over here. So when we run this, and it will show you the run configuration only. It doesn't show you the required command or required run application or Java application. ठीक है, इसलिए मैं इसको वन गो में अगर रन करना है तो दैट इज मच बेटर कि आप उसको CMD पे ही रन करो। यस हर्षित, हर्षित एनी डाउट? उसको बोल देना प्रेजेंटर बना भाई। ओके फाइन फाइन, जस्ट अ सेकंड। यस हर्षित, यस यू आर, यू आर। देखो इंटरफेस आप बना सकते हो, मैं बताता हूँ। एक आप पूरा प्रोग्राम भी ना, पूरा प्रोग्राम जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना रहे हो, आप पूरा प्रोग्राम एक ही उसमें बना सकते हो, फुल एक ही फाइल में। माइंड इट, आप एक पूरा प्रोग्राम, इफ आई शो यू वन ऑफ द एप्लीकेशन, मेरे पास पड़ी है, या तो मैं नेक्स्ट सेशन में शो कर दूंगा। मेरे पास एक एप्लीकेशन पड़ी है जिसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों मैंने एक ही में बनाए हैं, मतलब दोनों चीजें, और इंटरफेस वगैरह मैं एक ही में बनाया। तो
ये जरूरी नहीं है, बस ये है कि मेथड इन्वोकेशन का मतलब क्या है कि वो एक मेथड बनाएंगे, इंटरफेस बनाएंगे, उसमें से मेथड को इन्वोक करके कैसे हमने दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाना। अब एक ही मेथड जो है वो दोनों के लिए काम कर रहा है, क्लाइंट के लिए भी काम कर रहा है, सर्वर के लिए भी काम कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? बिल्कुल, मैं वही हर्षित, मेरा भी वही आंसर था कि अगर हमने उस पूरे को एक ही में डाल दिया, ठीक है, मैंने उसको एक ही पूरे प्रोग्राम में डाल दिया, तो फिर तो अगर उसमें मेन क्लास है तो फिर तो उस इंटरफेस की ऑटोमेटिकली क्या है, अगर उसी एक प्रोग्राम में मैंने 3 4 क्लासेस बना रखी है, तो मैंने एक को भी रन करा, तो उस इंटरफेस को अगर मैंने कॉल करा होगा ना, तो उसका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट या फिर उसकी ऑटोमेटिकली क्लास बन जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस केस में क्या है, उस केस में पूरा प्रोग्राम एक में है तो हमें वो बार बार करना नहीं पड़ेगा। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो मैं बता रहा हूं कि तो हमारे पास एक ये इजी वे है कि हम सारी क्लासेस को वन गो में रन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल टर्मिनल, जैसे आप बता रहे थे कि उसमें सिंगल टर्मिनल है, सो उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। और गायब हो गया। हम्म। Server. So when we run this, so it will wait for the client request. So here it is waiting for the client request. So when I open one more terminal, command terminal, so मैंने दोबारा से कमांड खोली, उसमें अब क्लाइंट वाले को रन करते हैं। याद है, याद है। So let me check the client request. The name of program is client request. उसी टाइम सीखी तो उसी टाइम बता दी थी। Client request. So R is capital. सो अब वो सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ और वहां से वो जो इंटरफेस था उसके थ्रू हमारे पास एक मैसेज आ गया। मतलब देखो, आप जैसे बोल रहे थे ना बेटा कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी या कुछ भी, मतलब उसमें अगर इंटरफेस बोला गया है कि मतलब जैसे नाम से ही है RMI, ठीक है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, तो मतलब हम उस मेथड एक अलग से मेथड बना के उसको एक्सेस करेंगे थ्रू सिंगल ऑब्जेक्ट और थ्रू द सिंगल स्केलेटन और स्टब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो चीज क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि जस्ट एक बताने के लिए कि एक प्रोग्राम, जो दो प्रोग्राम है जैसे क्लाइंट और सर्वर दोनों हैं, वो दोनों एक इंटरफेस को एक्सेस कर रहे हैं, एक ही मेथड के थ्रू सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। एक इंटरफेस बना दिया बीच में दोनों के, और उसी के थ्रू वो सारा कुछ चीजें जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, और उसी सर्च मेथड के और सर्च क्लासेस के साथ। क्लियर है ये? It is clear to everyone? So I am sending this code तो ही पढ़ने वाला है भाई। in your chat. So just बाकी सब तो run टाइम पास this कर रहे हैं। one. पहले अपनी अपनी मशीन पे रन करके देखो एक बार इसको। या क्या हो गया? मेरे को लगता है कोड ही सेंड करने पड़ेंगे। अबे So I'm ये uploading क्या था? over your ये क्या था? पागल ही गए। किस main हिसाब से class, इसने यही काम करे? जहाँ पे ऑल है ना, वेब सर्विसेज ऑल, जो इसको पहले से ही पता है कि अपलोडेड कॉपी ओवर पेस्ट ही हो सकती है, ऑल द चैट में कॉपी प्रोग्राम्स। कर रहा है पूरी फाइल को, फाइल समेत ही। अबे भाई साहब।
So you guys can download these and run in a single folder. पहले इनको और सिंगल इसी भी फोल्डर में रहेगी रख के ना, एक बार delete रन छोड़ना करके पड़ेगा। देखो. कर You लेंगे can तो। download from here. I'm setting it visible to all, for all. Okay, and this कहता बेटा this रिकॉर्डिंग video तो I नहीं will है, हर्षित share कहता with you आपको all कैसे guys. पता? ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है इतना, मतलब जो आपका मेन जो लास्ट वाला था, ठीक है, रिमोट ऑब्जेक्ट को या रिमोट मेथड को कैसे इन्वोक करना है, तो वो भी कंप्लीट हो गया है, जो आपका लास्ट ये लास्ट मेथड, और यू कैन से लास्ट एक्सपेरिमेंट, सॉरी, लेट मी शो यू द लैब मैनुअल. इसमें तो नहीं है, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, पूछ। भाई अबे तू तो तू प्रेजेंट प्रेजेंट कर करे यार, तो तू नहीं पूछेगा। सही बात है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक एरर आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी कि यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद योर बहाने बना सीखो इससे। क्योंकि सर्वर स्टार्ट नहीं होगा उस टाइम पे. क्लियर? हर्षित पूछ ले, 5 मिनट रहे।